Thank you guys for coming to the session, and I'm happy to listen to your opinion and suggestions. Comments, suggestion, any question around anything? Thank you, Matlub Saab. I mean, really informative session. Thanks a lot for that. Just wanted to understand कि आपके जो program है University of Sydney में, do we also delve into details of these various machine learning algorithms and when it comes to basically optimizing them or perhaps even working out some other algorithms or creating some other algorithms, do we prepare students enough to or enough for those details to they can actually create these algorithms, or is it just these we go over these algorithms, the various parameters, etc. within these algorithms, and how we can utilize the current existing algorithms on various problems do we have? Yeah, very interesting question. You are right. So it depends on the students to students. So the part of the major population don't really go into generating their own algorithms, but that really depends on the students. And many of my data science students who do the project with me, for example, this guy, this is my Scholar profile, where I have my publication. You can also look me up on the Scholar. So this Ting Meng, he developed this his own algorithm. So he was our Master of Data Science student. And then if I show you a couple of my recent paper, basically which is a work of our students. So this one, he generated a reinforcement-based learning algorithm. If you have heard a very popular event where a machine learning algorithm beat a world player in the Go. So that was a reinforcement learning methodology in the deep learning space. So he developed his own reinforcement methodology and developed this a new relative attention-based gated transformer in the portfolio management. He was the manager in one of the bank in Taiwan. So it really depends on the student, So if you ending up doing a project with me, then you will be doing some work under the hood. So it's really depend who do you work with and what are your intentions. If your intentions is just to pass a master degree, then obviously you do that way. But if your interest is really to learn what's happening under the hood and you want to come up with your own algorithm, then our Master of Data Science students absolutely do that. And I've done quite a few of these papers on my Master of Data Science students. But if you're really into algorithms and into developing new methodology, then probably you should be looking at doing MPhil in data science or PhD in data science or machine learning rather than the Master of Data Science. Thank you, Matlub Saab. If I want some further details, how can I reach out to you? Can you provide your contact details as well? Yeah, you just you put me in the Google. You'll get put my name in the Google. You get all my details there. We'll do that. Thank you, Matlub Saab. Sure. Happy to. Any more questions? मैं आबिद बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन का, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा। मैं भी कुछ अरसे से सोच रहा था परस्यू करने का। मैं बेसिकली हूँ सिस्टम इंजीनियर और मैं भी सोच रहा था कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस को के एज अ करियर परस्यू करने के लिए। तो शुरू में मैं चाहता था कि थोड़ा सेल्फ लर्निंग खुद से करूं ताकि मैं देख सकूं कि कितना वाटर डीप है। तो एक चीज़, क्योंकि डेटा साइंसेस या डेटा एनालिटिक्स के लिए जो उसका कोर है उसका डेटाबेस है। अब मार्केट में बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, MongoDB या SQLDB। तो सबसे बेस्ट क्या होगी अप्रोच, यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मार्केट में नॉन कौन सा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? देखिए, डेटाबेस जो है ना वो इंटायरली एक डिफरेंट डोमेन डेटाबेसेस। तो हम तो वो little bit we'll just touch upon the relational databases.
वो सिमिलर ही होते हैं सारे। MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, रिलेशनल डेटाबेसेस को हम थोड़ा सा टच करते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट टू स्टूडेंट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज इन दैट। अगर आप पहले 6 मंथ का GCDS कर लें, उसमें एक रिलेशनल डेटाबेस प्रॉपर तरीके से हम पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट यूनिट होता है, वो प्रैक्टिस ज़्यादा पोस्टग्रेस के अंदर होती है, लेकिन ऑल द डेटाबेसेस आर सिमिलर। जो रिलेशनल डेटाबेस है, ये MongoDB एंड वगैरह वगैरह जो है, ये रिलेशनल डेटाबेसेस नहीं है, ठीक है, नहीं है। हर एक की डिफरेंट टाइप्स है। तो जो रिलेशनल डेटाबेसेस आपके, ये MySQL है, पोस्टग्रेस है, SQL सर्वर है, Oracle है, ये सारे बेसिकली सिमिलर थिंग देते हैं। SQL की सपोर्ट होती है। DAO आजकल जो है वो नॉन SQL डेटाबेसेस में SQL की सिमिलर टू SQL सपोर्ट आ रही है, उसी तरह का सिंटैक्स आ रहा है, लेकिन ये एक इंटायरली डिफरेंट डोमेन है। तो वो जो प्रीरेक्विजिट नहीं होगा डेटा इस कैरियर के लिए आने से पहले एक थोड़ा सा बंदा अपने आप को टूल्स उसके रेडी हों, ताकि जब वो डीप डाइव करे इस फील्ड के अंदर तो उसके पास टूल्स हों। देखें, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं अभी आपको देने लगा हूँ, एंड आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, until you jump into the water you will never learn। और अगेन मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि Sydney University is absolutely not hungry for students. We choose and pick our students, and we are really highly selective, ठीक है। तो मेरे ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि भैया फटाफट मैं आपको इनरोल कर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। उससे हवाले से ये बिल्कुल भी ओपिनियन नहीं है मेरा। बिल्कुल, ये मेरे पर्सनल हैबिट है कि मैं जो है वो जंप कर देता हूँ और फिर मैं स्टार्ट टू लर्न स्विमिंग, ठीक है। तो मैं डाटा साइंस में ऐसे ही आया, मैंने कोई मास्टर ऑफ डाटा साइंस की डिग्री नहीं की हुई, बस मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जो है वो मेरी जो PhD है, बैचलर है, वो इंटायरली इज अ डिफरेंट स्पेस। तो एक नया फील्ड इवॉल्व हुआ, आई जंप्ड इनटू इट, लर्न माय सेल्फ एंड देन इक्विप्ड माय सेल्फ एंड देन स्टार्टेड टीचिंग। अब मैं पढ़ाने से पहले मैं सोचूं कि यार मुझे तो अभी ये खुद ही नहीं आता, अभी तो मैंने खुद नया नया सीखा है, मैं दूसरों को क्या पढ़ाऊंगा। तो देन आई कुड नेवर बी एट दिस प्लेस वेयर आई एम नाउ एट द मोमेंट। तो ठीक, मैं बात समझ गया। यानी कि जब तक पानी में छलांग नहीं लगाएंगे स्विमिंग कैसे सीखेंगे? वो कभी भी नहीं होगा, आप कभी प्रायोरिटी अपनी सेट कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसे ही होगा, 1-2 दिन आप 1-2 घंटे देखेंगे, फिर कहेंगे अच्छा यार करता हूँ। अगर तो आप स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं ना, देन यू इन्वेस्ट सम मनी, यू इनरोल समवेयर एंड देन यू विल फाइंड योरसेल्फ डूइंग समथिंग। और बेटर है कि ऑनलाइन डिग्रीज की बजाय जो है ना, कोई ये जो फेस टू फेस जो करवा रहे हैं प्रोग्राम, वहाँ पे आप जाएं। When you go into an environment and then sit to your other students and peers and lecturers next to them, then you learn from there. Environment really inspires you. हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाए, वहाँ पे वैसे 1 घंटा वॉक करेंगे तो आपको अपनी फीलिंग ही आपकी चेंज हो जाएगी। सही। आप कभी आके देखें, मतलब नॉट ओनली सिडनी यूनिवर्सिटी, मतलब हमारे तो वो बड़ा ही एक ट्रेडिशनल किस्म की यूनिवर्सिटी है ना, बट इवन इफ यू गो टू द UNSW और UTS वगैरह या वेस्टर्न सिडनी में भी आप इवन जाएं, तो लाइक यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट इज एंटायरली डिफरेंट किस्म का कल्चर होता है। यू गेट टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल देयर। तो वो जो इंस्पायरेशन है ना, दैट्स व्हाट यू रियली नीड, वो ड्राइव करेगी इसको, वो ड्राइव करती है आपको। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। What level of mathematics do you expect? देखिए, जो भी अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है ना, तो देन यू हैव व्हाट इट नीड्स टू बी। If the engineering is not there, अगर आपने इंजीनियर नहीं है, क्या बैकग्राउंड आपका? I told you. अच्छा, वही बात कर अब्दुल भाई, ठीक है। तो वो आपको ये है कि आप पहले वो कर रहे हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो मोस्टली लोगों ने किया ही होता है ना, HSC का। तो what we did was in year 10, not after that. सही है, स्टिल आप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स मेनली आपको ज्यादा जरूरत होती है जब आप रियली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं क्या हैपन हो रहा है बिहाइंड द सीन, थोड़ा सा उसमें रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि सारे लोगों की ना प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है ना वो नहीं होती, उसमें अपने आप को टेस्ट कर लें। आप कहीं पे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखें, यूट्यूब पे बहुत सारे बेशुमार वीडियो चैनल्स हैं। मैं खुद भी वो वीडियोस
के किड्स प्रोग्रामिंग के लिए वो बाज़ का सेशन करता हूँ, रिकॉर्ड भी करता हूँ, 1-2 मैंने अपलोड भी किए हुए हैं। तो लाइक यू स्टार्ट लर्निंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टार्ट विद अ पाइथन, ठीक है। तो आप उसको लर्न करें और एप्टीट्यूड चेक करें कि क्या आपको मजा आ रहा है, देख रहे हैं आप, इट मेकिंग सेंस टू यू। इफ इट ये जो एप्टीट्यूड है ना, ये थोड़ा सा एक एप्टीट्यूड का इस तरफ इशू है मुझे इसमें, जो है ना कि आपको do you really hate the programming or you kind of feel like, oh, you know, this is interesting? अगर आप इस तरह फील करें तो then it's enough. ठीक है आपने। तो आप ये एक आध को कोर्स, ये Udemy है, Coursera है, उसे कोई बेसिक्स ऑफ पाइथन बस आप कर लें, बेसिक, वेरी बेसिक पाइथन, लूप्स, if कंडीशन, बेसिकली चीज इधर से इधर मूव करनी है, डाटा रीड करना, वेरी वेरी सिंपल बेसिक थिंग. Well, in college I used to hate mathematics, but now it's नहीं, ये देखें वो एज के हिसाब से ना वो प्रायोरिटी भी चेंज होती रहती हैं और माइंडसेट भी चेंज. आई यूज्ड टू हेट बायोलॉजी एंड यू माइट बी सरप्राइज अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरी पीएचडी जो है ना वो टेक्निकली पीएचडी इन मेडिसिन है. मैं यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन से मैंने पीएचडी की है एंड इज ऑफिशियली कॉल्ड पीएचडी इन मेडिकल. मैं मेरे साथ जितने भी जो ग्रेजुएट हुए थे ग्रेजुएट सेरेमनी में वो सारे डॉक्टर्स थे, तो मेरी भी पीएचडी उनके साथ. और मैंने उसमें रियली बायोलॉजी को रियली पढ़ा. मेरे जो इनिशियल रिसर्च पेपर्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है. आप पढ़ें तो, और अगर आपको थोड़ा बहुत बायोलॉजी का या किसी डॉक्टर को पढ़ाएं तो यू सी दैट on what level of details I went into the biology and worked in the space. तो ये भी वक्त की बात होती है. जब मैं मैथमेटिक्स मैंने किया था मैट्रिक, उसके बाद बायोलॉजी में मुझे आई यूज्ड टू हेट द बायोलॉजी, दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू द इंजीनियरिंग. और पाकिस्तान में तो आपको पता है वो मैट्रिक के बाद ही आप चूज कर लेते हैं. द सिस्टम इज वेरी डिफरेंट हियर. तो अभी तो दुनिया ने रियलाइज कर लिया खैर कि भाई ये मैथमेटिक्स इज द बेसिक थिंग. ये ऐसा ही है कि जैसे आप कोई और नॉर्मल स्किल्स सीखते हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स मैट्रिक तक कंपलसरी है हमारे मुल्क में, इसी तरह ये जो है ना HSC 12वीं क्लास तक कंपलसरी होना चाहिए. और हमारे सिडनी यूनिवर्सिटी में मेडिसिन में ये क्राइटेरिया कर दिया इन्होंने फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स. इफ यू हैवंट डन द मैथमेटिक्स इन योर HSC 12वीं क्लास में, अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, यू कांट बी एडमिटेड इनटू आवर मेडिसिन प्रोग्राम. अब यहाँ से सिडनी यूनिवर्सिटी से आप डॉक्टर नहीं बन सकते अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो. मेरे लिए इसीलिए ऐसे हैरानी था कि जो मेरा इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन मेरे पास था, वो यही था कि यू आर वेल इनटू मेडिकल साइंसेस समवेयर. सो मैंने कैंसर रिसर्च पे बड़ा काम किया, 10 साल जिंदगी के उधर लगाए मैंने. तो लेकिन वो देखें, वो जब मैं उसके अंदर के गया ना, उसके अंदर जब मैंने देखा कि यार ये तो इंजीनियरिंग है सारी. एक्चुअली इंसान की बॉडी इज अमेजिंग मशीनरी. ऑल यू नीड टू लर्न सम बिट ऑफ टर्मिनोलॉजी, अदर देन दैट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम एनी फोर स्ट्रोक कंबस्शन इंजन. तो सारी इंजीनियरिंग है इसमें, बहुत इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स बहुत है. Thank you very much, Abdul Bhai. And any other question we have? If you don't have any questions, we can finish the session. Inab, do you want to ask anything? जी अस्सलाम सर, सॉरी मैं इंट्रोडक्शन नहीं पहले करवा सका. मैं आप पर्थ में हूँ तो पीछे हूँ टाइम से थोड़ा सा. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि rather than learning data science completely, कोई pre-developed applications हैं जहाँ पे आप सिर्फ अपने काम के हिसाब से अपना डाटा import करें और फिर अपने हाँ जी बिल्कुल बहुत सारी हैं. Orange is one of them. ये आपको ये मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ. ये Orange AI है, कैसे इसको सर्च करूँ. ये ऑरेंज एक, मैंने वैसे खुद इसको यूज नहीं किया हुआ, बट क्योंकि हम तो वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करते हैं, पढ़ाते हैं सारा कुछ. तो लेकिन इट्स वन ऑफ दैट थिंग. ये
जिसमें आप डाटा लोड करें और पॉइंट एंड क्लिक जो है ना वो इधर उधर बस क्लिक करें कि जी ये मुझे बनाओ, ये प्लॉटिंग श्लॉटिंग करता है। इसको आप एक्सप्लोर कर लें। ठीक है, थैंक यू। ये है, और इस तरह के और भी हैं काफ़ी सारे, सिर्फ यही नहीं है, काफ़ी सारे और हैं। एज़्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, गूगल के अपने गूगल ने भी कुछ निकाले हुए हैं क्योंकि इसकी नीड है मार्केट में काफ़ी, तो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। क्योंकि वो हमारा हम इस तरह के प्लेटफॉर्म टीच नहीं करते, तो उसको मैं मतलब हम एक्सप्लोर नहीं करते, लेकिन ये हैं और बहुत अच्छे हैं और ज़बरदस्त हैं। बेसिकली आप जस्ट अपना डाटा लोड करें, वो आपको ऑटोमेटिक। अच्छा, एक और कौन सा है मेरे जेहन में नहीं आ रहा, एक नाम मेरे जेहन से निकल गया, एक और बहुत अच्छा है। तो उसके मतलब इस तरह से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो फ्री भी हैं। ऑरेंज इज़ वन ऑफ देम, ये बिल्कुल फ्री है। सही। तो आप डाटा इसमें लोड करें, वो विजुअलाइज भी आपको कराएगा, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी हैं उसमें बहुत सारे। आप जस्ट उसको कहें ये लर्न करो, ये करो, वेरी इजी टू। और इसके यूट्यूब पे वो भी लेक्चर्स वगैरह वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। तो ये आप जैसे लोगों के लिए है एब्सोल्युटली, जो इसको जस्ट एक यूज करना चाहते हैं। ठीक सर। Any other question we have? अस्सलाम वालेकुम मतलब साहब, मेरा नाम फवाद है। आई थिंक सम पीपल मे नो मी। मैं मेरा अराउंड 17 years का एक्सपीरियंस है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से, एंड आई वर्क विद वेरी सीनियर रोल्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर विद वेरियस ऑपरेटर्स एंड वेंडर्स। और मैं डाटा साइंस एज ए कैरियर तो परसू करने पे वो नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सारा जो कैरियर है अराउंड 14-15 years वो एरिक्सन के साथ है, और एरिक्सन ऑलरेडी अपने डाटा साइंस और एआई के टूल्स जो है उस पर ट्रेनिंग करवाती रहती है। लेकिन ऑफ कोर्स आई वांट टू लर्न सम basics of some tools, like for example like basic of Python और या basic of machine learning and AI, ताकि एटलीस्ट फंडामेंटल लेवल पे कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, जो कि मैनेजमेंट में जब हम जाते हैं तो मैनेजमेंट में जाके जो है वो भी फ्रूटफुल हो। तो उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा, उसके लिए जो है ना, जो कोर्स इरा के ऊपर जो कुछ कोर्स पढ़े हुए हैं एंड्रयू एनजी के, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा थोड़े से मैथमेटिकल हैं, मतलब वैसे तो बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन दे मे नॉट बी फॉर एवरीबॉडी। तो उडैमी के ऊपर भी हैं। तो ये वैसे इतना हार्ड नहीं है इंजीनियर्स के लिए, बेसिक्स को कवर करना, लर्न करना, इट्स नॉट दैट हार्ड। आप ये कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ लें, ये कोई कंपैरिजन वीडियोस देख लें। ऑरेंज को मैं रिकमेंड करूँगा, इसको देख लें आप। अगर तो आपने खुद से करना है ना, कोई आप थोड़ा सा करना चाहते हैं खुद से, कोई एनालिसिस या कंपैरिजन या कुछ इस तरह से, फिर आपको इस तरह का एक प्लेटफॉर्म पकड़ लें जैसे ऑरेंज है। तो एज़ोर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर का अपना प्लेटफॉर्म है। गूगल ने भी दिया है, गूगल का जो है कोलैब, जिसके अंदर पाइथन रन होती है, वो भी बड़ा इजी है। विजुअली आप ब्राउज़र के अंदर ही उसमें आप टाइप करते हो पाइथन की बेसिक स्टेटमेंट्स। What about Microsoft का जो बिजनेस इंटेलिजेंस का है, BI जो है? BI है, वो भी ऐसे ही है। BI भी ऐसा ही है बिल्कुल। मुझे मैथ्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माय मैथ्स इज गुड, फेयरली रीजनेबल, तो वो मैथ्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स लाइक मैथ्स को थोड़ा ऑफ कोर्स उसको प्रैक्टिकल उसमें ट्रांसलेट करने के लिए फर्दर मुझे टूल्स पे फिर हाथ थोड़ा वो चाहिए होगा कि तो डाटा साइंस इज वेरी वास्ट फील्ड, जिसमें ऑफ कोर्स लाइक तो मुझे आर की बेसिक्स भी आती हैं और कुछ पाइथन का आइडिया है, लेकिन ऑफ कोर्स लाइक मैं बिल्कुल कोडिंग भी नहीं करना चाहता एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं बहुत सीनियर रोल्स पर आ चुका हूँ। और फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव हमारा ये होता है कि डाटा को विजुअलाइज कैसे करना है और उससे स्ट्रेटेजिक बिजनेस इंसाइट्स कैसे ड्राइव करनी है। तो उसके लिए कुछ टूल्स के टूल्स यूज कैसे करने हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है, और उसमें कौन कौन से टूल्स विद इन टेलीकम्युनिकेशन स्पेस यूजफुल होंगे, प्रोडक्टिव होंगे। I think it's a very good topic. अगर मतलब भाई, you can think about it and we can have a session where instead of going to the detail of nitty-gritty, if you can come up with some sort of a process or learning where the people who are in executive positions or in the managerial position, how they can improve their data analysis and data understanding skill. ठीक है, राइट। तो इज दैट ओके मतलूब, अगर मैं आपको 1-to-1 अप्रोच करूं, इज दैट ओके विद यू?
हाँ जी कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं जो भी कर सकूँगा। नहीं एटलीस्ट डिस्कशन ही हो जाए, आप काफी लर्नेड आदमी, तो एटलीस्ट डिस्कशन हो जाए तो आई विल गेट एटलीस्ट फ्यू इनसाइट्स टू स्टार्ट विद, किक ऑफ विद। ठीक है, श्योर श्योर। ठीक है डू वी थैंक हैव यू वेरी एनी मच। एक्सपर्ट इन बीआई? अगर हम बीआई पे एक सेशन करें, क्योंकि बीआई इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द ऑफिस इन्वायरमेंट, लेकिन वो ज़्यादातर ये है कि ऑफिस वालों ने एक बीआई का एक्सपर्ट रखा हुआ है, वो डाटा लेके करता रहता है। लेकिन आई थिंक दैट बीआई इज नॉट एज डिफिकल्ट, इज सिमिलर एडवांस सॉर्ट ऑफ एक्सेल ये है। तो लेकिन क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इफ समवन गिव हाफ एन आवर 1 आवर सेशन ऑन बीआई, उससे पहले हम उन्हें कहेंगे बेसिक लर्न करके आए, तो दैट मे बी अ गुड सेशन एज वेल। जी हाँ बीआई ये एक अच्छा टूल है, आम बहुत स्मॉल इंटरप्राइज लेवल पे काफ़ी यूज़ हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह बीआई के साथ जो टैबलो है, सैस है और इस तरह के जो टूल्स हैं, अब आई डोंट नो, मतलब ऑफ कोर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन स्पेस ये सारे टूल्स यूज हो रहे हैं, जिसमें टैबलो भी है, बीआई भी टैबलो की है। मैं बात कर रहा था, जो मेरे जेहन में नहीं आ रहा था नाम। टैबलो इज अनदर टूल कि आप उसको बस पकड़ लें, लर्न कर लें, तो लाइक उसमें सारा कुछ है। ये एक ऑरेंज है, टैबलो है, इसी तरह के ये प्लेटफॉर्म है। बीआई है, टैबलो इज फ्री एज वेल? नहीं टैबलो पेड है, टैबलो लाइसेंस्ड है। लाइसेंस है वो आपकी, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने लाइसेंस, आप उसका बेसिक कोई ले लें, डेमो वर्जन वगैरह को सीख लें थोड़ा बहुत, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको अगर पे लेकिन करती है तो क्योंकि फिर वो आजकल बीआई सब ने इंटरप्राइज लिया होता है, तो बीआई सब फ्री आता है, तो फिर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, जब बीआई आपके पास अवेलेबल है, हमने लिया हुआ है, तो व्हाई यू नीड टैबलो? उससे क्या बेहतर है या नहीं, डिफरेंट? टैबलो इज अ मच मोर पावरफुल प्लेटफॉर्म, ओके, लेकिन बीआई भी काफ़ी है, अब लाइक स्टार्टर लेवल के ऊपर, स्टार्टर लेवल के ऊपर बीआई इनफ है, लेकिन टैबलो जो है ना वो बहुत पावरफुल है। लाइक वो बहुत सारी लर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली खुद कर लेता है और आपको सजेस्ट करता है कि ये बना लो, ये कर लो, ये देख लो, ये रिपोर्ट देख लो, इस डाटा से ये हो सकता है। ऐसी वो चीज़ें करता है जो कि वो आपको बीआई में नहीं करता। थैंक यू। वो खुद ब खुद वो डाटा को लर्न करता है कि क्या डाटा के इनसाइड क्या है, बजाय आपके आप उसको बताएं। आप थोड़े से अगर उसको बेसिक्स सीख लेते हैं तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा वो ऑटोमेट प्रोसेस करता है कि इस तरह के डाटा के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं दूसरा एक क्वेश्चन और है, फवाद बोल रहा हूँ, तो क्या आपका, मैं खैर मैं वन टू वन में डिस्कस कर लूँगा, क्या आपने कभी काम किया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, जिसमें नैरो बैंड आईओटी है और वाइड बैंड आईओटी है, और इससे जो आरएफ डिवाइसेस से जो डाटा जनरेट हो रहा है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन से डाटा जनरेट हो रहा है, उसमें आपने काम किया है? कि हमारे एज, इसको कहते हैं एज कंप्यूटिंग, है ना। तो हम्म। एज कंप्यूटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो लगे रहते हैं, तो हमारा जो रोल होता है सुपरवाइज करते हैं उनको। तो दे आर द एक्सपर्ट इन द आईओटी डिवाइसेस और ये एज कंप्यूटिंग वगैरह की जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो वो फिर डाटा को जब वो एनालाइज करते हैं कि इस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बुलाते हैं, दैट्स वेयर वी कंट्रीब्यूट। तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि एक्चुअली वो एज डिवाइस वो अंडर द हुड क्या है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट्स, मैं उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ, वो ये वॉच बना रहा है कि वो आप पहनेंगे तो वो आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेगा 24/7। सो देयर इज नथिंग सिमिलर अवेलेबल ऑन द मार्केट, लेकिन वो एक्चुअली वॉच के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रहा है, वो उसका वही एक्सपर्ट है, वही काम करते हैं। लेकिन उसको डाटा जब वो वहाँ से जनरेट करके लाता है तो उसको हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, और देन वी ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर, दैट्स वेयर वी कंट्रीब्यूट। तो हमारी अच्छा, कंट्रीब्यूशन वो डाटा, जब डाटा जनरेट हो गया है, दैट्स वेयर वी कम इनटू पिक्चर। और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, उस पर किया आपने काम? जी जी। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल डिस्कस विद यू वन टू वन। We have ठीक है, only few minutes left. थैंक यू। There is a question from Sayyid Ali. Thank you for. जी अस्सलाम वालेकुम मतलब साहब, थैंक यू फॉर द सेशन। बड़ा इंफॉर्मेशन मिली। आई वाज नॉट इन द होल सेशन बट जितना भी था इट वाज गुड। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई जस्ट रन अ स्मॉल बिजनेस विद इन टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें हमने मार्केट में कुछ नई मेथडोलॉजीज इंट्रोड्यूस करी थी यूजिंग ड्रोन लाइक 4-5 years बैक, जो कि अब कॉमन प्रैक्टिस है मार्केट में विद इन ऑल मेजर कैरियर्स। अभी हम नोकिया के साथ कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। इसी के साथ कुछ हमारी एक और सेक्शन है आईओटी का, जिसमें हम लॉरा वैन पे थोड़ा काम स्टार्ट हमने किया है। लॉरा वैन का काम मेजर यही है, सारा डाटा कलेक्शन फ्रॉम एवरीवेयर व्हेरेवर यू कैन,
और वो डाटा इतना होता है कि उसको कंप्यूट करना और ये सारी चीज़ें करना, दैट्स अनदर डिपार्टमेंट जिसमें सारा आपका डैशबोर्ड्स एंड डाटा रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट आता है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली थोड़ा बिजनेस रिलेटेड ही है, कि इसके कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं, और मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि अगर LoRaWAN की एक्चुअली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है फ्रॉम वन ऑफ द जर्मन गुड मैन्युफैक्चरर, तो उसको हम यहाँ भी लोकल थोड़ा कुछ काउंसिल्स में अप्रोच कर रहे हैं, कुछ केस स्टडीज बना रहे हैं। तो इसमें कुछ, एक तो आप माशाल्लाह खुद ही प्रोफेसर हैं इसी फील्ड में, यूनिवर्सिटी कुछ मेरे लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में बात है, उनके साथ कुछ चीज़ों में हम थे इन्वॉल्व, एक दो टेंडर्स थे उनके साथ। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है बिजनेस रिलेटेड केस स्टडीज और इस तरह के कामों में, rather than just the research work, like on ground issues को रिजॉल्व करने या उसके केस स्टडीज बनाने में? नहीं, सॉरी, मेरा इसमें नहीं हुआ इतना एक्सपीरियंस, मेरा इसमें नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में हैं ऐसे लोग जो और काम, जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं, वो उनके कोई मेजर प्रोजेक्ट्स इनसे रिलेटेड है, लाइक टेलीकम्युनिकेशन या समथिंग रिलेटेड, कलेक्टिंग वो तो इंफॉर्मेशन? रिसर्च प्रोजेक्ट्स तो बनाया जा सकता है, उसमें ये ऐसे सिनेरियो भी होते हैं कि आप फंड करते हैं स्टूडेंट को स्टाइपेंड वगैरह, लाइक अगर आप कोई रिसर्च किसी डोमेन में करना चाहते हैं, ये एक बड़ा कॉमन सिनेरियो यूनिवर्सिटीज में, कि जहाँ पे इंडस्ट्री पार्टनर जो है वो कोई फंड करता है, वो स्टूडेंट को स्टाइपेंड पे करता है $30,000-40,000। अगर नॉर्मली कोई आप बंदा वो फुली हायर करें उस तरह उस लेवल का, तो यू माइट बी लुकिंग टू पे मिनिमम $100,000। तो वो स्टूडेंट आपको उसी कैलिपर का लाइक 30-40,000 में मिल जाता है, और वो रिसर्च करता है फुल टाइम पर, बिकॉज वो इसकी डिग्री होती है एंड इट बिकम्स द ब्रेड एंड बटर फॉर हिम और हर एज वेल। तो उसमें वो जान मारता है, बड़ा डे एंड नाइट काम करता है, उसमें कोई नई चीज़ें वो निकाल के लाता है, नई चीज़ बनाता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो उसमें फिर वो दोनों एंड पे फ़ायदा होता है कि लाइक स्टूडेंट की वो डिग्री कंप्लीट होती है, रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश करता है, और जो इंडस्ट्री पार्टनर है उसका जो भी वो रिसर्च क्वेश्चन था या जो भी प्रोडक्ट था, जो भी इस पे काम किया सोल्यूशन, उसको वो सोल्यूशन मिल जाता है एक इन चीपर जी, वे। बस ये वी आर जस्ट आफ्टर द सेम थिंग जो अभी आपने बताई।